It's our fourth lecture on semiconductor. Today we'll see the metallic structure of the PN junction diode. Okay. PN junction diode. Okay. So before now we have already seen what do you mean by depletion layer, what do you mean by barrier potential. Okay. We just take an overview of the previous point. That is what N-type semiconductor is having the pentavalent impurity element. That is what donor impurity, and P-type semiconductor having trivalent dopant element. That is acceptor impurities. Okay. The next, when we make together P and N type semiconductor, that is called junction. That is called junction. Okay. Before applying any electric charge, there is, we have already seen the migration of charge, means some holes move from P region to P region to N region, and some electrons move from N region to P region. Okay. But after that, applying an electric charge on a PN junction diode, there is the two way. One is what? The positive terminal of battery connected with P region and the negative terminal of battery connected with N region. Okay. So here diagrammatically we are showing this. Here this is what? This is the P side and this is N side. Okay. So here this is what? Forward bias PN junction diode. This is what? Yes. Forward biased or biased PN junction diode. Okay. Diode or dielectrode. Okay. Diode or dielectrode. Okay. Do you know what do you mean by anode and cathode? Yes? And tell me, what do you mean by anode? Yes? Okay, only this property you know about. Okay, anode is positive, cathode is negative. Great, okay. Leave it here. This is what? Forward bias PN junction diode. This is the metallic structure of PN junction diode. Okay? Metallic structure of a PN junction diode. Okay. Here somewhere, suppose we are having another one PN junction diode. So yes, this is a diode. Okay, only this part. Here the connection of battery is like what? There is the positive terminal, there is the negative terminal. This is what? Yes, reverse. Yes, reverse. Yes, biased PN junction diode. Okay. So here we are having two different types of diodes. First is what? Forward bias PN junction, and here is the reverse bias PN junction. Here आप लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वो क्या? इनके जो बैटरी के कनेक्शंस है वो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद पी रीजन है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद एन रीजन है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस ही रहेगा. लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ कैसी रहेगी? कम. क्या रहेगी? डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम. कल ये देखा ना हम लोगों ने. ओके, ये पी और एन. अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट कर दूं तो होगा क्या? ये पॉजिटिव इन होल्स को क्या करेगा? रिपल्ट करेगा.
वैसे यहाँ से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। इस वजह से यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है उसका वेट कैसा होगा, कम होगा। ओके, समझ में आया। और अगर इसके मैकेनिज्म में देखा जाए तो यहाँ पे कैसा रहेगा, हमारे कनेक्शन उसके वाइस वर्सा रहेंगे। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मींस ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट करेगा होल्स को और ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट n साइड को करने के बाद ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की ये बढ़ जाएगी, लेकिन डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते से ही बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो आपका बैरियर पोटेंशियल कैसे होगा, बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने ये दो चीजें ऑलरेडी कल देख ली है। ओके, आज से उनका ओवरव्यू देखना था। और ये जो है ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसा है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है डायोड का। ओके, मींस ये ऐसा एक ट्रायंगल और उसके सामने जो सीधी लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मीनिंग है ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, वो लाइन का मीनिंग। ओके, नाउ हियर द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट। द p side is called the anode and n side is called the cathode. Okay, p side is called the what, anode and n side is called the cathode. अब इस मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, आया ना। जैसे कि okay, the behavior of diode in both cases is different. This is because of barrier potential is affected differently in the two cases. The barrier potential is reduced in what? First stage. Okay, then the current through the diode is forward bias is therefore a large, it is of the order of the few milliampere, that is what 10⁻³ एम्पियर। ओके, और अगर यहाँ पे देखा जाए रिवर्स बायस में तो वो क्या होगा, 10⁻⁶, यानी कि वो माइक्रो एम्पियर में होगा, बराबर। ये एम्पियर और ये माइक्रो एम्पियर, 10⁻³ उसका रेंज है और इसका रेंज कितना है, 10⁻⁶। ओके, the current through the diode is forward bias is therefore a large, it is of the order of the few milliampere, that is what 10⁻³ ampere to 10⁻⁶ milliampere. For a typical diode, the current is reverse bias diode with a, यहाँ पे उनका जो करंट है इसको ऐसा लिख ही देंगे। ओके, और ये कितना है, 10⁻⁶, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, माइक्रो एम्पियर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहूँ, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखना चाहूँ, अगर आप बोलोगे कि कोई भी एक पीएन जंक्शन डायोड हमने ले लिया और इसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये पीएन जंक्शन डायोड है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ने के रीजंस कैसे कैसे हैं। अगर मैं ये डायोड किसी प्रोसेसर के पास लगाता हूँ, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रोसेसर के पास लगाता हूँ, जैसे कि हम लैपटॉप या मोबाइल का एग्जांपल ले लें। ओके, अब ये जो है ये आईसीज में भी यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में भी सेमीकंडक्टर का यूजेस है। अगर ड्यू टू द कंटिन्यूअस यूज ऑफ दैट डिवाइस और लॉन्ग टाइम अगर मैं उस डिवाइस को यूज कर लूं तो क्या होगा, वहां पे प्रोसेसर एक हीट जनरेट करेगा, बराबर। ड्यू टू दैट हीट, यहाँ पे ये प्योर सेमीकंडक्टर से बनी हुई चीज है, इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी, बराबर। वो राइज होगी, लेकिन ये बढ़ती ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़ती ही चली जाए तो वहां पे जो छोटे छोटे डिवाइस है, आपके ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे डायोड हो सकते हैं, इनको वो हार्मनेस पहुंचा सकता है। मींस यहाँ पे करंट का राइजिंग जो है वो कुछ लिमिट तक ही होना चाहिए। फिर उस लिमिट को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही इसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड बायस से ब्लॉक होके ये रिवर्स बायस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस व्हाट, उस सर्किट में दोनों पीएन जंक्शन लगे होंगे,
एक तो फॉरवर्ड बायस भी लगा होगा और दूसरा रिवर्स बायस भी लगा होगा। जिस वक्त इसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर चला जाएगा, इट मींस व्हाट, यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि सेंसर के जैसा ये काम करेगा। जैसे ही ये उसका लिमिट क्रॉस कर देगा, ये खुद को बंद कर लेगा, ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाएगा। और वैसे ही जैसे ही ये टर्न ऑफ होगा वैसे ही इसका काम स्टार्ट होगा। इट मींस व्हाट, वहां पे वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ये सेंसिटिवली वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा। जैसे ही टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा उसको, जैसे ही उसका बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बराबर, उसका बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इट मींस व्हाट, वहां पे करंट बढ़ रहा है, इजंट इट? तो वो ऑटोमेटिकली खुद को बंद करेगा और जो रिवर्स बायस वाला है उसे स्टार्ट करेगा। अब रिवर्स वाले बायस वाले का तो प्रॉपर्टी हमें पता ही है, वो क्या करेगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ा देगा और बैरियर पोटेंशियल को कम कर देगा, जो कि रिक्वायर्ड है। बाहर के जो छोटे छोटे स्मॉल, हमने कल भी डिस्कस किया था, वो लॉजिक गेट्स हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे डायोड्स हो सकते हैं। क्लियर? प्रोसेसर को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो या तो ये दे सकता है जब तक प्रॉपर काम कर रहा है तब तक। अगर ड्यू टू ओवरहीट इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है तो ये खुद को टर्न ऑफ करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसके पास वो कंट्रोल दे देगा। और इसका प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये ऑलरेडी ही बहुत कम एम्पेयर पे काम करता है, बहुत कम एम्पेयर वाला आउटपुट हमें देता है, इसलिए हमारे जो प्रोसेसर है वो अच्छे से काम कर जाते हैं। सीधा सा अगर एग्जांपल ले लिया जाए, आपका फोन, सेल फोन, आप देखोगे कि ड्यू टू ओवरहीट, जब भी आपका फोन ड्यू टू द यूज ऑफ हेवी गेम, आप बहुत बड़ा गेम, ग्राफिक्स वाला गेम अगर मोबाइल पे खेल रहे हो तो जैसे नेट की जरूरत है, तो कंटिन्यूअस खेलने की वजह से क्या होता है, आपका सेल फोन थोड़ा गर्म हो जाता है। ओके, गर्म होता है इन द सेंस व्हाट, वहां पे हीट बढ़ जाती है। आप देखोगे कि उस वक्त आपके फोन की स्पीड कम हो जाएगी, जैसे ही वो गर्म होता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगर आप नहीं रुकते हो, अगर आप नहीं रुकते हो, मींस ये इसके पास कन्वर्ट करने के बाद भी अगर नहीं रुकते हो, यहां पे पावर बढ़ने के बाद इसने क्या किया, खुद को टर्न ऑफ कर दिया, इसको कंट्रोल दे दिया। अगर आप इसके पास पहुंचने के बाद भी नहीं रुकते हो, तो हर स्मार्ट डिवाइस में एक टेम्परेचर का फिर से एक हम क्या बोल सकते हैं उसे, कि एक बैरिकेड लगाया हुआ है, इसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो फिर पूरा प्रोसेसर ही शटडाउन हो जाएगा, पूरा प्रोसेसर ही शटडाउन हो जाएगा। मींस आपका फोन अगर स्मार्ट है तो एक एरर मैसेज आपके स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट होगा, योर फोन इज ओवरहीटिंग। कैसा मैसेज दिखाई देगा, योर फोन इज ओवरहीटिंग। अगर फिर भी आप उसे अवॉइड करते हो, अगर फिर भी आप उसे अवॉइड करते हो, ये चीजें स्मार्टनेस के लिए यूज होती है। ये जो पीएन जंक्शन डायोड्स है, ये किसके लिए, स्मार्टनेस के लिए। तो वो जो पावर सप्लाई बैटरी से आ रहा है वहां पे बैरिकेड लगा देगा, मींस आपके फोन को वो ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा। और पावर बटन को वो करंट नहीं देगा, कब तक नहीं देगा, जब तक इसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है मेंटेन नहीं होता तब तक के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, आपके पास स्मार्ट आयन होगी घर पे, है आप लोगों के पास स्मार्ट आयन, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही करंट लेती है, जैसे ही वो लेवल पे पहुंच गई वो करंट लेना बंद कर देती है। वही है ना, ये वही है, वहां पे यही चीजें यूज होती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आप रिच कर जाते हो, वो करंट लेना बंद कर देगी, जैसे ही टेम्परेचर उसके नीचे जाएगा वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? मींस जहां जहां भी स्मार्टनेस इन द सेंस व्हाट, द मशीन बिहेविंग like an intelligent person, it means what, that machine is a smart machine, and that smart machine is made up of with the help of semiconductors. Okay, so here we are having the two different type of semiconductor. One is what? Yes, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Okay, intrinsic semiconductor practically we cannot be used. Why? Because of it is a temperature sensitive. Clear? Absolute 0 degree, it behaves like an insulator. So instead of intrinsic we are preferring extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor have two different types. One is what? Forward bias and one is reverse bias. Okay, clear? Why we call forward or reverse? Because of due to the battery connection of them. Okay, when a positive terminal of battery connected with P region, negative terminal of battery connected with in N region, it means what? फॉरवर्ड बायस। इसमें होता क्या है, डिप्लेशन लेयर का वेट कम होता है। क्लियर? ये जो बातें हैं ये आपको परमानेंटली याद रहनी चाहिए, तभी ना जाके ये चैप्टर आपको
12th में हेल्प करेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके नेक्स्ट थोड़ा सा लिख लीजिए या फिर आप इसे बाद में ले लीजिए, इसे आप वैसे भी लेते हो ना फोटो निकाल के। ओके, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज with an increase in the application of a forward voltage। yes, हमने देखा है कि इसका विड्थ कम कब होगा, जब हम यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन में अगर देखा जाए तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, कम होगा। कम होने के रीजन क्या है, ये होल्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या करेगा, रिपल्ट करेगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन है उनको अगर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट है तो उसे वहां से रिपल्ट करेगा, बराबर। तो इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा है, लेकिन जो विड्थ है वो क्या है, कम हो रही है। विड्थ क्या है, कम हो रही है। ओके, द नेक्स्ट, it increase when a reverse voltage is applied. A diode can be thus used as one-way switch in a circuit. It is forward bias when it is anode is connected to be at high potential that of the cathode. When the anode is at lower potential, it means what, reverse bias में अगर होता है, okay, lower potential then that of the cathode, it is reverse bias. A diode can be zero bias if, कब बोल सकते हैं ये डायोड जीरो बायस हो सकता है, जैसे कि अभी ये पीएन जंक्शन डायोड हमारा है, ये जीरो बायस कब होगा, जब हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त यहाँ पे इसका बायसिंग नेचर कैसा होगा, जीरो, बायसिंग नेचर जीरो। लेकिन इट डजंट मीन अगर ये बायसिंग नेचर जीरो है तो यहाँ पे इनके आयंस एक्सचेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। स्टैटिक नेचर पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे होल्स है, बराबर, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों को अगर एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगा, बराबर। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे और इसके कुछ होल्स इधर मूव कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पोटेंशियल नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इसका बायसिंग नेचर जीरो है। बायसिंग नेचर कैसा है इसका, जीरो है। until connect with the battery we are not able to get the biasing nature of PN junction diode, whatever it may be, forward or reverse, it totally depends on connection of battery. Clear? Okay, the next, forward bias, the positive, फिर से उसे नल रटने की जरूरत है ना, सुनने की जरूरत है। यस, कोई बता सकता है? तो देख लेंगे आप। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या जरूरी है, बैटरी कनेक्शन, खड़े रह के बता दो। मतलब उसके जो चार्ज होते हैं ना, हाँ, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के लिए बैटरी के कनेक्शन कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, पी जंक्शन में पॉजिटिव, एन जंक्शन में नेगेटिव। पी और एन को आप अलोन जंक्शन बोल नहीं सकते, बोल सकते हो? पी रीजन को पॉजिटिव होना चाहिए और एन को नेगेटिव। हाँ, वैसे नहीं बोलना है आपको। यस, नहीं, हमने अब 2-3 बार देख लिया ना ये चीज है। यस, in forward PN junction we connect the positive charge to PN type region and we connect PN type। फिर से सुन लो, बैठो। सुनने के बाद आप लोगों को पता है कि ये मुझे तो आ रहा था। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद P रीजन और P साइड, and negative terminal of battery connected with N region or N side. It is called forward bias PN junction diode. Clear? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, या अब ये जो फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन है बैटरी पे डिपेंड करता है, लेकिन आफ्टर दैट कनेक्टिंग बैटरी, what happen with the depletion layer and barrier potential? That is also very important. That is what in a forward bias PN junction diode, the width of depletion layer will be reduced, compress होगा ना, क्यों? क्योंकि P रीजन में होल्स है, N रीजन में इलेक्ट्रॉन है। N को आप नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, P को पॉजिटिव से, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, होगा क्या, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या होगा दोनों ओर से, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फिर जो विड्थ है वो कम होगी लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे होल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा होंगे, बराबर। एक्साइटेशन स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिल जाएंगे,
जो वहां से पोटेंशियल बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। बैरियर का मीनिंग क्या है आप लोग पहले वो समझ लो। बैरियर मीन्स व्हाट? यस, ट्राई टू अपोज। बैरिकेड या बैरियर, इनके मीनिंग क्या है? वो वहां पे क्या कर रहा है? यस, वो जो जितना भी बड़ा पोटेंशियल बना हुआ है, अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बैटरी ये 0.5 वोल्ट का ही होना चाहिए। बैटरी ज्यादा भी हो सकता है ना आपका, है ना? लेकिन अब डिपेंड करेगा कि मुझे उससे कितना लेना है, उससे कितना लेना है, तो वो डिपेंड करेगा फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस। हमने देखा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आपका है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, जिसे आप स्मार्ट कहते हो, आजकल तो एसी भी स्मार्ट हो गए हैं, बराबर? आप घर बैठ किसी ऑफिस का एसी चालू कर सकते हो, या आपका एसी घर का आप आपके ऑफिस से भी ऑपरेट कर सकते हो, बराबर? तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? स्मार्ट नेचर ऑफ दैट डिवाइस, एंड दैट डिवाइस बिकम अ स्मार्ट ऑन द बेस ऑफ सेमीकंडक्टर, on the base of semiconductor. Why? Because of it is a completely heat and electric sensitive device. ये हीट सेंसिटिव भी है और इलेक्ट्रिक सेंसिटिव भी है। इलेक्ट्रिक सेंसिटिव कैसा? अगर आपका हीट का कंडक्शन अगर बढ़ता ही जा रहा है, मींस कंटिन्यूअसली टेम्परेचर इज गोइंग अप, ओके, राइज हो रहा है टेम्परेचर, तो क्या होगा? इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप उसकी हीट उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बाद जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वो उतना करंट या उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज सह पाएंगे या नहीं? उनकी कैपेसिटी है या नहीं? नहीं है ना? अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? खुद को टर्न ऑफ कर लेगा। क्या कर लेगा? खुद को टर्न ऑफ और कंट्रोल फॉरवर्ड कर लेगा रिवर्स बायस की तरफ, बराबर? फिर रिवर्स बायस भी उसे कब तक ऑपरेट कर सकता है? जब तक उसका एबिलिटी है तब तक। आप अगर स्टिल कंटिन्यूअस यूज ही करते जा रहे हो तो वो क्या करेगा? वो पावर को ही कट करेगा, मींस बैटरी से जो पावर आ रहा है उसे ही वो अपोज करेगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। अगर स्टिल आप सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट करोगे या फिर फोर्सफुली उसे स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, इट मे द कॉज ऑफ डैमेज योर डिवाइस। वो बन सकता है रीजन आपके डिवाइस को डैमेज करने का। क्लियर? ओके। आप लोगों को पता है हमारे घर में जो मेंस यूज होता है, मेंस यूज पता है? एमसीबी स्विच, आजकल वो स्मार्ट आ गए हैं, है ना? Yes. वो स्मार्ट ऑटोमेटिकली अगर कहीं पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ जाए तो ट्रिप हो जाते हैं। वहां पे भी सेमीकंडक्टर है, वहां पे भी क्या है? सेमीकंडक्टर है। इससे पहले एक जो स्मार्ट आपके एमसीबी स्विच आए, उससे पहले क्या था? एक सिरेमिक मटेरियल से बना हुआ फ्यूज होता था, उसके अंदर एक वायर होता था। वो वायर मैक्सिमम टाइम कॉपर का ही होता है, मैक्सिमम टाइम वो वायर कॉपर का ही होता है। क्यों कॉपर का ही? क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से कम है, बराबर? अगर वोल्टेज आपके अप्लायंसेस के कैपेसिटी से ज्यादा आ जाए ड्यू टू एनी रीजन, फ्लक्चुएशन और लाइटनिंग के वक्त भी आपका वोल्टेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बराबर? इस वक्त अगर आपके घर के डिवाइस जो है वो बने होते हैं 200 to 200 वोल्ट, 220 वोल्ट के लिए, 200 से 220 वोल्ट वो वैरी कर सकते हैं, लेकिन सडन 500 वोल्ट अगर आपके मीटर कनेक्शन में आ जाए तो क्या होगा? आपके अप्लायंसेस से धुआं निकल जाएगा ना। तो वो जो फ्यूज था पहले, इससे पहले ये स्मार्ट फ्यूज से पहले, उसमें जो कॉपर वायर रहता था उसकी जो थिकनेस थी बहुत कम थी। उसकी थिकनेस कम थी इन द सेंस व्हाट? उसका डायमीटर कम था। डायमीटर कम था मींस व्हाट? उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, एटम कम थे ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम कम थे, तो वो उतना वोल्ट वैरी नहीं कर पाता था। वो इसी के जैसा, हाँ 220 तक मैं वैरी कर सकता हूँ, चल थोड़ी देर में तो 30 भी ले लूंगा, 40 भी ले लूंगा। अगर आप 250 देने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा? ड्यू टू द हीट वो रेजिस्टेंस जनरेट कर देगा। क्या करेगा? कॉपर रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, बैरिकेड लगा देगा ना, वोल्टेज को फ्लो नहीं होने देगा उतने स्पीड से। लेकिन पीछे से वोल्टेज का अगर प्रेशर है, वो रेजिस्टेंस को भी मान नहीं रहा है, तो फिर कंडक्टर क्या बोलेगा? नहीं यार, अब मेरे बस की बात नहीं, वो डैमेज कर देगा। क्या कर लेगा? डैमेज, क्योंकि हीट को अपना बैरी कर नहीं पाता है ना। समझ में आ रही? अगर इंस्टेड ऑफ कॉपर आप एल्यूमिनियम लगाओगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, मींस वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा आपके डिवाइस को, हाँ, लेकिन पावर कट जितना कॉपर में होता है उतना एल्यूमिनियम में नहीं होगा, मींस बार बार पावर कट नहीं होगा अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है
वोल्टेज में कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन है और आपके पास अगर कॉपर वायर लगा है फ्यूज में तो आपको पावर कट फेस करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, जैसे थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया डैमेज, थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया डैमेज। ये अपने स्मार्ट एमसीबी स्विच है, उनको भी देख लो आप। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी वोल्टेज लीकेज है तो वो ड्रॉप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ट्रिप होते हैं कि नहीं, है ना। फिर आप क्या करोगे, तंग आके उसको रिप्लेस कर दोगे एक फ्यूज के साथ और उसमें इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर लगा दोगे एल्यूमिनियम। लेकिन अब आपके जो ये पूरे डिवाइसेस है, अप्लायंसेस है, ये सिक्योर नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो आपके घर में आने वाले वोल्टेज को अबव 220 को कंट्रोल कर पाए। वो 300 तक तो अलाउ कर देगा, 400 तक भी अलाउ कर देगा। फिर वो डिवाइसेस इतने सारे वोल्ट के लिए बने नहीं होते। फिर हम बोलते हैं कि डिवाइस खराब हो गया या जल गया। फिर उसे जब ऑपरेट करने वाले रिपेयर करने के लिए लेके जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने सुना होगा अगर आप लेके गए होंगे, अगर उस ऑपरेटर को कुछ ना ही समझ में आए तो भी वो बोलेगा आपका आईसी खराब हुआ है। क्या बोलेगा वो, आपका आईसी खराब हुआ है। आईसी मींस व्हाट, integrated circuit and that is a combination of number of PN junction diode। वो क्या है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारे PN junction डायोड से मिलके जो बना होता है वो है आईसी। और आईसी जो क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एक छोटा सा प्लास्टिक का एक टुकड़ा रहेगा और वहां से जो कॉम है, टू साइडेड कॉम, पहले लेडीज लोग यूज करते थे, देखा है ना आपने, टू साइडेड कॉम। इस कॉम के जैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसे कहते हैं आईसी। यहाँ पे बहुत सारे पीएन जंक्शन डायोड भी होते हैं और ये पीएन जंक्शन डायोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट। मैं आप लोगों को कल बोला था ना कि 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं, कौन से एंड, और तीसरा होता है नॉट। दैट इज नॉट अवर पार्ट, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल दिया। ओके, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट है, एंड और नॉट। इनसे मिलकर हम 2 पीएन जंक्शन डायोड को एक साथ कर सकते हैं, 3 को एक साथ कर सकते हैं, हजारों को एक साथ जोड़ सकते हैं, बराबर, विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग दिस गेट्स। ओके, लीव इट। इन अ केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, अब तो फिर से रटने की जरूरत नहीं है ना। अब रिवर्स बायस का कौन बोलेगा, हाँ, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी का कनेक्शन कैसा रहेगा सर? हमारा कैसा है? हाँ चालेल, काय हरकत नाही सर, पी टाइपला निगेटिव्ह चार्ज आपला होतो आणि एन टाइपला पॉझिटिव्ह चार्ज। ओके, यालाच काय म्हणायचं, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। ओके, बस खाली, खूप सोपं आहे। आपण काल ज्या डेफिनेशन घेतल्या, काल तुम्हाला सांगितलं मी तर 2च लक्षात ठेवायचे काय, व्हेन अ पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विथ एन रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विथ पी रीजन। आप इसको पी से भी स्टार्ट करोगे तो होगा क्या, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विथ पी रीजन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विथ एन रीजन, दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का क्या होता, यहाँ पे ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एन पे और पी पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या है, यहाँ के सारे होल्स इस ओर दौड़ेंगे, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इस ओर दौड़ेंगे, बराबर। इट डजंट मीन पूरे के पूरे, कुछ तो बचेंगे ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की वो बढ़ जाएगी। विड्थ क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की बढ़ जाएगी, लेकिन पोटेंशियल जो मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट, अब हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले आप लोग को ये पता है कि ये क्या है, क्या 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 किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Current is inversely proportional to the resistance. Yes, current is inversely proportional to, okay, then tell me what do you mean by resistance?
अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर यहाँ पे हीट का क्वांटिटी बढ़ जाता है, हीट अगर बढ़ जाती है तो ड्यू टू द हीट यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस, ये हो गया रेजिस्टेंस। बराबर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हडल के जैसा है, ब्रेकर के जैसा है। बराबर, यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, क्या पता आपको है या नहीं, करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही रिवॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये एक मेटल है, ये वायर है, इसका अगर एक एटम में ले लूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनका रिवॉल्विंग डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि करंट लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा है। करंट कैसे ट्रैवल कर रहा है? लेफ्ट टू राइट। मैं इस वायर को यहाँ पे करंट दिया, वो इधर जाएगा। बराबर, समझ में आ गया? लेकिन इस वक्त इसमें जो सारे एटम बने हुए हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्विंग का डायरेक्शन होगा वो होगा उसके रिवर्स साइड में। मींस करंट का डायरेक्शन ये रहा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा। बराबर, अब होगा क्या? अगर ये कंटिन्यूअस जा रहा है, अब इसका इस केबल का कैपेसिटी है समझो 10 वोल्ट लेके जाने का। कितना? 10 वोल्ट लेके जाने का। आप अगर इस केबल में से 20 वोल्ट ले जाने की कोशिश करोगे फोर्सफुली, क्या करोगे? फोर्सफुली, तो जाहिर सी बात है अगर कोई 5 साल का बच्चा है वो अगर 2 केजी इफिशिएंटली कैरी करता है, आप उस बच्चे को अगर 10 केजी दे दोगे वो कैरी करेगा, लेकिन इफिशिएंटली करेगा क्या? नहीं, वो बहुत जल्दी थक जाएगा क्योंकि उसके पास इतना इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है ही नहीं है कि इतने वेट को वो कैरी कर पाए। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे ये जो इसका डायमीटर है ये बना हुआ है 10 वोल्ट के लिए, आप उसको दे रहे हो 20 वोल्ट, वो फोर्सफुली लेकर भी जाएगा, लेकिन होगा क्या? इसके हर एटम पे स्ट्रेस आएगा ना। हर एटम पे स्ट्रेस क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ एटम है इसकी ये विड्थ में, जो सपोज ऐसा अज्यूम कर लो कि यहाँ पे 100 एटम है। बराबर, उसके फ्रंट स्पेस कितने? 100 एटम है। अब 100 एटम को आप 10 वोल्ट के लिए बना रहे हो, उन्हीं 100 एटम को अगर 20 वोल्ट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? हर एटम पे प्रेशर डबल, हर एटम पे प्रेशर डबल, इसका रिवॉल्विंग स्पीड और बढ़ जाएगा। बराबर है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग स्पीड बढ़ जाएगा। वो देगा, लेकिन ड्यू टू दैट स्ट्रेस, द डिस्टेंस बिटवीन two molecule of that material is starting to increase. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा ड्यू टू द हीट। अब उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इट मींस व्हाट? अगर ये अगर कोई मेटल कैटेगरी का है तो हमें पता है कि इनके कंडक्शन और वैलेंस का ओवरलैपिंग होता है। बराबर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हीट बढ़ा दूं तो ये ओवरलैपिंग नेचर कैसा है? वो डिफरेंस में बदलने में देर नहीं लगती। जैसे ही इनका ओवरलैपिंग कम होने लगेगा, इट मींस व्हाट? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जनरेट होगा। ये रेजिस्टेंस भी एक नेचुरल डिफेंस ही है उस कंडक्टर का। वो नेचुरली डिफेंस कर रहा है कंडक्टर कि मैं खुद को डैमेज ना करूं। मींस क्या होगा? ये रेजिस्टेंस जनरेट होने के बाद आप 20 वोल्ट दोगे, यहाँ पे मिलेगा 15। कितना मिलेगा? 15। लेकिन आपको 20 आप दे रहे हो फोर्सफुली, इन द सेंस आपका जो अप्लायंस यहाँ पे लगा है वो 20 वोल्ट पे काम कर रहा है। अब ये दे पाएगा 15, इसको चाहिए 20, फिर ये क्या करेगा? फिर से इसे खींचेगा। मींस इसके इस एंड पे भी प्रेशर तो इधर भी था उसके, वो 10 के लिए बना, भेज रहे हो 20, यहाँ पे वो 20 में से 15 लेके जा रहा है। बराबर, ड्यू टू द रेजिस्टेंस। स्टार्ट में उसने दिया 20 का 20, लेकिन स्ट्रेस बढ़ने के बाद क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस से उसका फ्लो स्पीड बढ़ गया, वो लेके जा रहा है 15 वोल्ट। लेकिन ये अप्लायंस है कि जो नहीं मानता, उसे चाहिए 20 वोल्ट, फिर वो क्या करेगा? खींचेगा ना उसकी ओर से, दे 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 दे। तो इस वजह से इसका टेम्परेचर सडनली बढ़ जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर सडनली बढ़ जाएगा और ये खुद को क्या कर लेगा? डैमेज कर लेगा। ये उसका अल्टीमेट डिफेंस डिसीजन होगा। अब उससे नहीं होता, ये डैमेज कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब एक्चुअली हमने इसलिए लिखा था, स्टोरी यहां से शुरू हुई थी।
ओके, तो ये जो है अब समझ में आ गया आपके, ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर में कैसा है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या अगर रेजिस्टेंस का एरो ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली करंट का एरो उस वक्त नीचे जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होना ही है। यहाँ पे वही तो देखा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया मींस क्या हो गया, करंट का फ्लो कम हो गया। क्लियर, ये है बेसिक और फंडामेंटल लॉ। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें देखना है VI, एक्चुअली प्रोनाउंस उसको VI करना चाहिए, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में IV लिखा है। क्या लिखा है, IV लिखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया वोल्ट वाला और ये हो गया I वाला। हो V मींस वोल्ट और I मींस करंट। ओके, अब करंट हमारा कैसा है, माइक्रो एम्पियर में है और वोल्ट हमें पता है, ये यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 अप टू दी व्हाटएवर। ओके, अब यहाँ पे 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 हमारा लास्ट स्टेट है ना। ओके, क्लियर, ये है I। अब क्या होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लेके जाना पड़ेगा। अब समझो, ओके, ये क्या दिखा रहा है, बोलिए। करंट। हाँ, लेकिन ये ग्राफ दिखा क्या रहा है, करंट की चलो और एक फॉर्म में बता दो। ये क्या है, करंट, ये है वोल्ट। ओके, अब ये वैल्यूज को आप अज्यूम कर लो। हाँ, बोलो मुझे, करंट की स्पीड, क्या बोले, करंट की स्पीड, करंट की स्पीड विद रिस्पेक्ट व्हाट, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है, चलो ग्राफ पता है ना आप लोगों को, कोई भी ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। चलो इसी को समझ लेंगे पहले। एक्चुअली पढ़ना यही है, यही है, लेकिन इसको क्यों समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कुछ चीजें है। ओके, इसको भी, अब यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्ट है। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इनके जो नंबर है वो पॉइंट में है या कैसे है। आप सिर्फ इंटीजर में भी इसको समझ लो तो भी ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू है 1 से लेके 6 अप टू दी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब 0 वोल्ट था, स्टार्ट में कितना था, 0 वोल्ट था, उस वक्त करंट में कितना था, 0। अब अगर आपका 1 वोल्ट बढ़ गया, क्या हो गया, 1 वोल्ट बढ़ गया, तो ये करंट में कोई ऐसा चाहिए उतना चेंजेस नहीं आ रहा है। कहां तक, जब तक करंट का वैल्यू 4 है तब तक कंसिडरेबल चेंजेस नहीं है उसमें, है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका करंट इस 4 वाली वैल्यू को क्रॉस कर जा रहा है, 4 वाली वैल्यू को क्रॉस कर जा रहा है, आप देखोगे कि वोल्टेज में सडन इंक्रीमेंट आ गया। हुआ कि नहीं, ये सडन इंक्रीमेंट। ओके, तो इस तरह के जो इंक्रीमेंट आते हैं करंट के रिस्पेक्ट वोल्ट या वोल्ट के रिस्पेक्ट करंट में, 2 ग्राफ निकाले थे हमने। एक बार इसमें आया था इंक्रीमेंट और जो इससे पहले था उसमें इस ओर आया था इंक्रीमेंट, देख रहे हो ना। ओके, तो इसको बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इसे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। I यानी करंट, V यानी वोल्ट। ओके, अब अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी पुट करो ना, कुछ भी वैल्यू डजंट मैटर, आपको सिर्फ उसका नेचर, जो सडन चेंजेस आ रहा है, अब वो क्यों, हाँ वो एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्यों। तो ये जो पॉइंट है
ये इसे हम कहेंगे नी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? नी पॉइंट। नी तो कहा उसको, ये स्ट्रेट है और अगर बेंड कर रहा है तो यहीं से होगा ना, ये स्ट्रेट है और यहां से ये लाइन बेंड हो रही है। क्या हो रही है? बेंड। वो लॉजिक उन्होंने क्या यूज किया आई डोंट नो, बट मैं उसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। ओके, तो यहां तक जब तक आपका करंट 4 है, एक 0 से लेके 4, यहाँ पे जो वेरिएशन है वोल्ट का वो उतना दिख नहीं रहा है हमें, होगा स्लाइटली कुछ माइक्रो सेंटीमीटर या माइक्रो एम्पेयर में हो भी सकता है, लेकिन जो कंसिडरेबल है जिसे हम देख सकते हैं खुली आंखों से, वो वेरिएशन हमें यहां से मिल रहा है। और मिला ऐसे वैसे नहीं है, सडन स्पीड से इंक्रीज हो जा रहा है। कैसे? स्पीड से इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन उस वक्त सिर्फ यही इंक्रीज हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है ना, उसके हिसाब से ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, समझ में आया? लेकिन यहां तक क्या था, सिर्फ यही इंक्रीज हो रहा था, ये होल्ड में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे थे। होल्ड ये एक से ही स्टार्ट हुआ, एक पे जा रहा, एक पे जा रहा, करंट तो बढ़ रहा था, वोल्टेज आपका वही था। लेकिन यहां से क्रॉस करते ही क्या हो गया, करंट के रिस्पेक्ट में इसे भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली अगर इस ग्राफ को आप नॉर्मल बिहेवियर में ऐसे देखोगे तो आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देगा, ऐसा एबनॉर्मल वाला इंक्रीमेंट। ये नेचुरल वाला इंक्रीमेंट हो गया ना, समझो ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अगर 1 वोल्ट है तो ये करंट का भी एक पॉइंट ले लिया, ये 2 है तो इसको भी यहां से ले लिया। इनके कोऑर्डिनेट कैसे? स्ट्रेट लाइन के लिए पैरेलल कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हमें, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सडन वेरिएशन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये आईवी का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कि ये कुछ, मैं आपको बोला ना कि पर्टिकुलर वक्त तक आपको उस होल्ड से वो करंट मिल जाएगा, उस होल्ड से वो करंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है तो उसके ही रिस्पेक्ट में आपको होल्ड को भी बढ़ाना ही होगा। समझ में आ गया? आपको होल्ड को भी बढ़ाना ही होगा। क्लियर? तो ये ऐसे बोल सकते हैं फिर हम, यस, ऐसा बोल सकते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर में क्या आ रहा है? होल्ड मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल्ड। आया ना? मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, समझ में आया ना? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल्ड, और इसी में एक साथ उसको बोल लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? हाँ, जो कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं।